esteemed faculty of all the esteemed faculty of NIT Hamirpur and Beena ma'am and Amit Kaul sir for providing me this opportunity. And I am very obliged that I get this opportunity to express my experience and my journey with all the students of NIT Hamirpur in presence of esteemed faculty members. So, sir, we can start. So, I am starting sharing my screen. Sir, is the screen visible? Yes, it is visible. So, topic for today's talk is preparation strategies for GATE and PSU exam. Actually, during our BTech, we also did the same. पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा टॉपिक है तो हम इसके बारे में बिल्कुल हम इनफॉर्मली टॉक करेंगे क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ ऐसी टाइप की पीपीटीज देने में. आई एम हियर जस्ट टू एक्सप्रेस माय जो एक्सपीरियंस मैंने किया है और जो भी मेरी जर्नी रही थी ये गेट की प्रिपरेशन के दौरान, तो वो आप सबको मैं शेयर कर सकूं. और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप में से काफी लोग इससे, कुछ लोग जो कि सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको कुछ तो फायदा मिलेगा जो भी आज की पीपीटी रहेगी. और पीपीटी के अंत में हम अगर कुछ आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो उसके लिए भी एक सेशन थोड़ा टाइम रखेंगे. अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर. गेट ग्रेजुएटेड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. तो आई थिंक बीटेक भी कर रहे हैं तो सबको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रहता है कि क्या है. इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया और 7 IITs और ISC बेंगलोर का एक कंजोर्टियम मिलकर इनको कंडक्ट करवाता है. साल में एक बार पेपर होता है, 3 घंटे का रहता है और प्रेजेंटली ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है. जनरली गेट में अभी जो पैटर्न है उसमें 65 मार्क्स का पेपर रहता है. 65 क्वेश्चंस रहते हैं जो टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है. और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन रहते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं. और जो गेट है जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया में कंडक्ट किया जाता है और कुछ सिटीज आउट ऑफ इंडिया भी मैंने कंडक्ट करवाती है जो गेट अथॉरिटी है. तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था अबाउट द एग्जामिनेशन. आगे एक क्वेश्चन आता है कि इतना हम सुनते हैं गेट गेट गेट, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेट एग्जाम? व्हाई पीपल राइट द गेट एग्जाम? व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज which a person can go through by writing GATE exam? So I will show some small view on this, that what are the opportunities through GATE. So it is very known to all that by fighting GATE and scoring good ranks, we can get admission in MTech, ME, MS or PhD courses of various IITs, NITs, IIITs and ISC Bangalore. Also, some private engineering college, renowned private engineering college also take MTech and PhD admission through GATE score. And if anyone want to do MBA program, then there is a option to do MBA in NITI Mumbai, which is also a very known college for MBA. And apart from academics, if anyone want to join central government PSUs, then GATE provides the way for them. Many central government PSUs, which includes Maharatna, Navratna and Mini Ratna PSUs, uses GATE score for their screening, for their recruitment of entry-level engineers. In that, they take the score from directly from IITs and call for interviews. And after combination of marks from interview and GATE, they select candidates for their jobs. Apart from central government PSUs, many state government PSUs like state electricity boards and public health engineering departments also recruit
engineers through GATE score. And some private companies are also there which uses GATE score for their recruitment purpose. Okay. Then one first and foremost question which comes in our mind when we thought about the GATE, that what should be the right time and right strategy for GATE preparation. Because when we go into BTech first year, then in the college environment हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है कि हमें फर्दर करियर कैसा चूज करना है, हमें एक टीचिंग लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या फिर मैनेजमेंट साइड की हायर स्टडीज में जाना है. तो वो हमारे पास टाइम होता है कि हमें कुछ चूज करना है कि हमें क्या करियर में आगे बढ़ना है. तो उसके लिए हम अगर गेट की प्रिपरेशन करनी है तो क्या राइट टाइम रहेगा कि जहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए. तो मैं उसमें अपने इनपुट थोड़ा आपको शो करूंगा. व्हाट इज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या राइट टाइम है गेट के लिए, तो इसके एक फेमस कोट है कि राइट टाइम टू डू ए थिंग इज व्हेन यू आर श्योर यू वांट टू डू इट. क्योंकि आपके पास केवल तभी उतना डिटर्मिनेशन और पेशेंस लेवल होता है उस चीज को अचीव करने के लिए जब आप अपना पूरा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को करना है. तो दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द थिंग. और अब पर्टिकुलरली गेट की बात करें तो गेट की एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, कैंडिडेट कभी भी अपीयर हो सकता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं है, इसलिए कभी भी गेट, इट इज नेवर टू लेट टू राइट द गेट एग्जाम. बट कभी भी आप चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कभी चालू करें तो बहुत जल्दी है. तो और ऐसा भी नहीं है कि गेट को एक फिक्स फॉर्मूला हो कि गेट का प्रिपरेशन इतने टाइम में किया जा सकता है. ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है कि कोई लोग कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है. अकॉर्डिंगली उतना टाइम उसको चाहिए होगा गेट की प्रिपरेशन के लिए. राइट टाइम टू स्टार्ट. अब अभी हम अगर बात करें, अगर आइडियली बात करें अगर गेट की प्रिपरेशन के लिए, तो सेकेंड ईयर हमारा ऐसा होता है कि जहां से हमको गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. मतलब अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट ईयर में हमें गेट की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करनी चाहिए. उसका एक रीजन है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो टेक्निकल सब्जेक्ट जो गेट में स्टार्ट होते हैं, जो गेट के सिलेबस में आते हैं, वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारे चालू होते हैं. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और कुछ फाइनल ईयर में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं. तो फर्स्ट ईयर में हमें इतना दिमाग में क्लियर भी नहीं होता है कि हमें क्या करना है आगे और कैसे करना है. तो आई थिंक फर्स्ट ईयर शुड बी इन्वेस्टेड कि हमें क्या करियर चूज करना है और उसको कैसे चूज करना है. एक बार जब वो क्लियर हो जाता है तो हम क्या फर्स्ट ईयर में भी वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. और उसमें ये है कि अगर हमने मान लो जल्दी एक स्टार्ट कर दिया और तब तक हमारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, तो वो जो टाइम वो वेस्ट होगा. इससे बेटर है कि हम प्रॉपर पहले प्लानिंग करें, उसके बाद में उसको स्टार्ट करें. जैसे हम बात करें तो आपको मैं पहले बताया कि थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड ही हमारे ज्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, तो हमें तभी चालू करना चाहिए. और उसका एक बेनिफिट भी है. आपको गेट, अभी जो गेट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग फाइनल ईयर में आप फर्स्ट टाइम गेट एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद तो कभी भी दे सकते हैं. फाइनल ईयर से पहले आप गेट एग्जाम नहीं दे सकते. तो अगर आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर देंगे तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपका एक सिलेबस टाइमली आप पूरा कवर कर पाते हैं और आपको पर्याप्त टाइम मिल जाता है आपकी जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करने का और प्रैक्टिस करने का. क्योंकि गेट एग्जाम में ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है. पीपीटी में मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे रहेगा. तो अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि जब फाइनल ईयर के बाद जो ईयर ब्रेक हमको मिलता है, जो हमें छुट्टियां आती है, उसमें हम नॉन टेक्निकल पार्ट्स और लाइक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब का प्रिपरेशन चालू करें. और उसके बाद में फिर जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होती है तो फिर हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी चालू करें. ये तो राइट टाइम की बात हो गई सर. अभी हम राइट स्ट्रेटजी की बात करते हैं. Lokesh, if you can restart your PPT, then it will be good because there are certain scratches on the जी screen. सर, मैं करता हूं.
अमित, ये शुभम कौन है? मैम, इनको need बोलो to थोड़ा check. ढंग से सुनो, नहीं तो लीव कर जाओ। Okay, ma'am. जी सर, स्टार्ट करें सर। चलो Yes, ठीक है। yes, now it's fine. राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट आता है स्ट्रेटजी में, नो योर सिलेबस एंड द वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसीलिए कि हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है। तो सिलेबस जो है गेट का मोर और लेस हर साल सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो आप जब भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो लेटेस्ट सिलेबस जो है उसको आप चेक कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है। उसके बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, तो आप उनको राइट डाउन कर लीजिए या उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके बाद में एक एक करके आप प्लानिंग करेंगे। उसमें आपको काफी बार होता है कि हमारी जो बीटेक डिग्री में जो सेम सब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन रहता है कि बीटेक में एक्स्ट्रा होता है, या फिर कुछ चीज ऐसी जो गेट में हो सकता है वो बीटेक में कम तरीके से दी गई हो। तो सिलेबस और क्या क्या टॉपिक्स है, वो क्या क्या उसमें है, और क्या पुराना पैटर्न है गेट का, उनमें कैसे किस टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम ढंग से पहले जान ले। ये काफी बेनिफिशियल रहता है। दूसरा वो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा पॉइंट भी इसमें ये है कि आप पुराना पैटर्न को जानने के लिए जो गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो ये काफी आप नेट से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे पुराने पेपर। उसके अलावा बहुत सारे मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है जो एक सब्जेक्ट वाइज पेपर्स को सेग्रीगेट करके और देते हैं, तो उनसे भी आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट जो कहना चाहूंगा, काफी बार क्या करते हैं स्टूडेंट, जो गलती करते हैं इस चीज में, वो टोटली पुराने पैटर्न को देख के उसी को फॉलो करके उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। लाइक मैं अपने टाइम का एग्जांपल दूं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें से पिछले में हमने जो 4-5 साल का देखा था उसमें बहुत कम क्वेश्चन आते थे, 1 या 2 क्वेश्चन आते थे हार्डली, और वो कम वेटेज रहता था। तो हम लोग कम प्रिपरेशन करके गए थे और काफी लोग मतलब उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। और हमारे वाले पेपर में उसमें से 3-4 क्वेश्चन आए थे एनालॉग में से, 7-8 मार्क्स का इनफैक्ट उसमें प्रोपोर्शन बना था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पुराना पेपर आप एक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे आप टोटली उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो आप एक रेफरेंस समझने के लिए पुराने पेपर को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी आपके टॉपिक्स जो भी सब्जेक्ट में है वो सारे आपको प्लानिंग कीजिए। और जो आपका जो सेमेस्टर में जो भी एग्जाम, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जब वो पढ़ाए जा रहे हैं कॉलेज में, उसके साथ में आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उससे एक बेनिफिट सबसे ज्यादा ये रहता है कि अगर कोई भी डाउट रहता है तो हम रेस्पेक्टिव फैकल्टी से हम कंसल्ट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो भी हम फैकल्टी की हेल्प ले सकते हैं। और उसमें आप अगर, क्योंकि हम काफी बार क्या है कि जनरली तो हम बुक से पढ़ते हैं अगर फैकल्टीज नहीं पढ़ा रहे हैं तो, और या किसी वीडियो से पढ़ते हैं, लेकिन हम पर्सनली उनसे बुक में या वीडियो में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं और डाउट वगैरह नहीं सॉल्व कर सकते। तो उस केस में फैकल्टी की हेल्प हम ले सकते हैं, तो ये एक फायदा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट बुक एंड गुड रिसोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन। तो इसमें यह है कि हमें कौन सी बुक यूज करनी है और क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारी प्रिपरेशन में, क्योंकि जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही फिर हम आगे कर पाएंगे एग्जाम में परफॉर्म। तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक कोई बढ़िया, या फिर एक नहीं पूरी हो पा रही तो 2 किसी भी अच्छे ऑथर्स की बुक हम सेलेक्ट करें हर सब्जेक्ट के लिए, और फिर उनको हम फॉलो करें। बहुत ज्यादा बुक्स में से भी अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है और इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो पहले हम या फैकल्टीज की हेल्प ले लें या सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, और वो पहले ही हम फाइनल कर लें, फिर उनको हम फॉलो करेंगे।
कोई एक पर्टिकुलर छोटा मोटा टॉपिक अगर किसी स्पेशली थर्ड या फोर्थ बुक से रेफर करना है वो कर सकते हैं, बट पूरा पूरा बुक अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो उतना टाइम नहीं रह पाता। और बाकी कहा भी जाता है और ये ठीक भी रहता है कि हम बुक पे ज्यादा रिलाई करें अदर देन सम और कोई मटेरियल या किसी का नोट की कॉपी है वगैरह वगैरह, उसकी बजाय हम जो फर्स्ट टाइम रीडिंग जो कर रहे हैं वो बुक से करना प्रेफर रखना चाहिए। उसके अलावा आजकल बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक NPTEL की वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे टॉप IITs और NITs के प्रोफेसर के वीडियोस और स्टडी मटेरियल वहाँ पे है, तो उनका हम यूज कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें रेफर करना है, तो वो भी काफी अच्छा रहता है। जैसे हमारे टाइम का मैं एग्जांपल बताऊं, हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो हमने NPTEL के IIT बॉम्बे के काफी अच्छे प्रोफेसर के वीडियो थे वो हमने रेफर किए, वो बहुत अच्छे से समझाया गया था, तो वो डाउट्स हमने क्लियर कर लिए थे। अगला पॉइंट आता है, हाँ, जो हम डिग्री के दौरान जो बुक्स को यूज कर रहे हैं तो उनको भी रेफर कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि हम अलग अलग जगह से मटेरियल से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो बेटर है कि सेम बुक हम रेफर कर लें। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी सब्जेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि आप अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कभी भी पढ़ाई आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जब एग्जाम देना है तब तक आपको कम से कम एक सब्जेक्ट 5 से 6 बार रिवाइज करना रहता है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, तो फिर तीसरा पढ़ने के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट को भूलने लग जाते हैं, तो आफ्टर सम इंटरवल आपको रिवीजन करना होता है। और रिवीजन में अगर हम फिर से वही बुक और वो सब फॉलो करने लगेंगे तो इतना टाइम नहीं बच पाता है, तो इट इज गुड स्ट्रेटजी कि आप एक नोट बनाइए, अपने नोट में सारी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट है या कोई फॉर्मूलेज है, वो सारे उसमें होने चाहिए, और वो नोट आपको जब भी रिवाइज करोगे दोबारा में तो आपको वो काम देंगे और आपको उन्हीं से रिवीजन करना है, ये आपका टाइम बचाएगा। यही बात है जो मैं आपको बताई थी। थर्ड पॉइंट आता है प्लान योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो आपको जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्लान प्रॉपरली प्लान करना है, और प्लान ऐसा करना है कि ऐसा भी नहीं हो कि मतलब अनरियलिस्टिक प्लान कर ले, रियलिस्टिक प्लान करना है और अकॉर्डिंगली फिर उसको फॉलो करना है। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें, जैसे मैंने बताया सेकेंड ईयर एक आइडियल टाइम है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए हैं, आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप थर्ड ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनल ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट जिस भी टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लानिंग ऐसी रखिएगा कि जब आपको एग्जाम लिखना है तब तक आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए, अपना रिवीजन कर पाए और प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि गेट एग्जाम सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा फायदा रहता है। एक कोई भी सिंगल प्लान अगर हम बता दें यहाँ पे तो वो सभी के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है, सबको अपनी टाइमिंग और क्या कितनी वो अपने आप का डिवोट कर सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर आप बीटेक कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने का बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया था, तो एक 7 से 8 महीने का टाइम एक सफिशिएंट होता है कि आप पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर पाए, रिवीजन कर पाए और एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाए। जी, इसके लिए एक बेटर स्ट्रेटजी है कि आप टाइम टेबल बना लें और उसको फॉलो करें, डेली, वीकली, मंथली टारगेट्स रखें और उन टारगेट्स को टाइमली आप रिव्यू करते रहें कि आपने टारगेट अचीव किया कि नहीं, अदरवाइज उसको रिवाइज करें और उससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट, द आफ्टर मेकिंग ऑफ प्लान, फोर्थ पॉइंट इज फॉलो योर प्लान। तो आप इंश्योर करें कि आपने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें और ट्राई करें कि आपने जो टारगेट रखे उससे पहले आप टारगेट अचीव कर पाए, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप आपके प्लान से जो रियलिस्टिक होंगे। सबसे अच्छी जो प्लानिंग ऐसी रहती है कि अगर आप एकदम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो पहला सब्जेक्ट आप एक कुछ बेसिक कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लें
उससे शुरुआत करें और साथ में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई अच्छा टॉपिक भी ले सकते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स को स्टार्टिंग में रख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स भी एक काफी बड़ा हमारा करीब जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 13 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रहता है। तो और 15 नंबर का रहता है जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। तो हमें ये अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी चाहिए कि वी शुड ट्राई कि जो 28 to 38 मार्क्स का जो हम बोल सकते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट जो रहता है, जिसमें कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहती है, उसमें से हम कोई भी मार्क्स लूज ना करें, क्योंकि ये इसमें सबसे कम एफर्ट में सबसे अच्छा स्कोर हम ये इस पोर्शन में कर सकते हैं। रेस्ट जो 70 मार्क्स है उसकी हम स्ट्रेटजी तो प्लान करेंगे ही अलग अलग सब्जेक्ट का, बट ये जो 28 to 30 मार्क्स है इनको कम एफर्ट्स के साथ और बहुत कम चीजें इसमें याद कर, जो मेमोराइज करने की चीजें बहुत कम होती है, तो वो हम प्रैक्टिस ज्यादा करें और एक दो चीजों को समझ लें तो ये 28 to 30 मार्क्स में हम अच्छा अचीव कर सकते हैं। बाकी 70 मार्क्स की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अगर कोई करना चाहता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे आगे जो सब्जेक्ट रहते हैं सब में नेटवर्क थ्योरी के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो मैथमेटिक्स और नेटवर्क थ्योरी को आप एक स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं। ऐसे ही अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बाकी सब्जेक्ट में भी इस टाइप के सब्जेक्ट होंगे तो वहां से शुरुआत की जा सकती है। टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी कीजिए और एक सब्जेक्ट को कंप्लीट पूरा कीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई टॉपिक किसी का थोड़ा टफ लग रहा है वो हमने छोड़ दिया कि नहीं इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले इजी टॉपिक पढ़ लिए। ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं रहती है। काफी बार क्या है वो टॉपिक रह ही जाता है और या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो कॉन्सेप्ट यूज होना होता है तो वो फिर वो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है और काफी बार एग्जाम तक वो टॉपिक छूट जाता है और उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। और सब्जेक्ट बेस्ड नोट्स बनाना, जो मैंने आपको पहले ही बोला, वो बनाने हैं और वो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट आता है, इसके एक्चुअली दो भाग होते हैं गेट की प्रिपरेशन के। एक आपका होता है कि आपने थ्योरी पढ़ ली और उससे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ ली है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए तो भी जरूरी नहीं है कि आप गेट में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रादर देन कि आपको जस्ट मेमोराइज करने वाले क्वेश्चन हो या कोई डेफिनेशन हो। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली गेट में बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में अच्छा स्कोर करने का तरीका एक ही है, जितना ज्यादा और जितने ज्यादा तरीके के आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप उसमें स्कोर कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चंस के लिए हो सकता, जैसे बहुत सारी चीजें रहती है कि प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो तो आपको करने ही है। उसके अलावा भी, क्योंकि बहुत जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, तो बहुत सारी मार्केट में ना बुक्स भी रहती है प्रैक्टिस की क्वेश्चंस के लिए, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस पार्ट में मेरा एक ही कहना है कि जो भी आप करेंगे वो ऑनेस्टली कीजिए। आप जो भी अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्वेश्चन की, चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, ट्रीट इट लाइक ए गेट एग्जाम, कि आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि आप कोशिश कीजिए फॉर्मूला खुद से रिकॉल करने का, रादर देन कि आप नोट्स में चेक करो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो उससे एक बार हो सकता है आपसे गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस बनेगी और वही आपको मेन हेल्प करेगा। अगर आप फॉर्मूला बुक से देख के और फिर सॉल्व करने लग जाएंगे तो फिर वो आपका उसमें कोई आउटपुट नहीं निकलेगा उस प्रैक्टिस को करने का। तो कोशिश कीजिए कि ऑनेस्टली आप कर पाए। ठीक है। जो एक मैंने इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे प्रैक्टिस करने का, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी अगर इस टाइप की बुक्स को आप रेफर करते हैं तो प्लीज आप बहुत ध्यान से इनको करना होता है। काफी बार बहुत सारी मिस्टेक्स इनमें मिलती है, बहुत सारी मिस्टेक्स मिलती है। बाकी ब्रांचों का मुझे नहीं पता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का मैं कहना चाहूंगा हमारे टाइम पे हमने RK कनोडिया की बुक्स आती थी सॉल्व करने के लिए, वो हमने बहुत फॉलो की थी।
लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक रहता था, काफी के आंसर्स में मिस्टेक रहता था, काफी सारे क्वेश्चन में भी मिस्टेक रहता था। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप मिस्टेक को भी ड्यूरिंग आप प्रैक्टिस आप पकड़ सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है, तो आप ये खुद बता सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप पेपर को ऑनेस्टली दीजिए, पेपर होने के बाद आप उसको डाउट को क्लियर कीजिए। जहाँ पे भी आपको नोट्स रेफर करना है, बुक रेफर करनी है, किसी से पूछना है फैकल्टी से या सीनियर से, तो वो कर सकते हैं। और ऐसा करके जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आपके वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके वीक है, जहाँ पे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइज एज मच एज यू कैन। एक्चुअली गेट का सिलेबस आप एक तरह से देखेंगे कि इंजीनियरिंग के जो 4 साल का सिलेबस है उसको सम करके आपको एक एग्जाम में देना है। तो जैसे ही हम 1, 2, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पुराने सब्जेक्ट को भूलने लगते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना जल्दी हमारा ब्रेन उस चीज को जल्दी रिटेन कर पाएगा। तो हमें बार बार रिवीजन जितना करेंगे उतना हेल्पफुल रहता है इस चीज के लिए। तो आप प्लान बनाइए, वीकली, मंथली, जिस टाइप से आपको बेटर रहता है वो उस टाइप से अपना खुद का प्लान कर सकते हैं रिवीजन करने का। और जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो फर्दर रिवीजन जब भी कर रहे हैं तो उसका टाइम डिक्रीज होना चाहिए, तभी हम मान के चलेंगे कि हमें आउटपुट आ रहा है और हमें गेन हो रहा है। अदरवाइज अगर सेकंड रिवीजन में फर्स्ट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो ये फिर हमारा हो सकता है कि हम फिर चीजों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें अपना उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और रिवीजन में रिवीजन का मतलब केवल थ्योरी या कॉन्सेप्ट को पढ़ने से या मेमोराइज करने से ही नहीं है। रिवीजन का मतलब है आप प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों को साथ में रिवाइज करें। जब भी आप रिवीजन करें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे जो भी प्रॉब्लम लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी हमारा जो हम क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हैं, वो सारी प्रैक्टिस हमको हर बार रिवीजन में रिपीट करनी है, तो तभी वो बेनिफिशियल होगा। खाली थ्योरी को बार बार रिवाइज करने से कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है सॉल्व गेट क्वेश्चन पेपर, जो मैंने शॉर्ट में पहले बताया भी था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्चुअली जैसे हम बाकी क्वेश्चंस तो करते ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमें एक गेट एग्जाम का लेवल क्या है उस लेवल के सारे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। और इसमें एक ये भी रहता है कि गेट के एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल हर बार सेम नहीं होता है, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे एक धारणा है जिसमें गेट में कि गेट का पेपर जब भी आईआईटी कानपुर बनाता है तो बहुत हाई क्वेश्चन मतलब बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा सारे सब्जेक्ट्स में लोग बोलते हैं, और ऐसा हमने तो देखा भी है। तो आप देख सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो जिस ईयर में आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया तो जैसे मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे बाकी आईआईटी के भी कुछ ऐसे टाइप की धारणाएं हो सकती है। तो वो सारी चीजें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखेंगे तो हमें एक क्वेश्चन का लेवल हमें देखने को मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो जितने ज्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करेंगे उतने ज्यादा हम उस टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, तो वो बेटर रहेगा। हाँ, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अभी तक हम जो प्रैक्टिस का बात कर रहे थे वो एक ऑफलाइन प्रैक्टिस का बात कर रहे थे, लाइक किसी किसी बुक में से क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व करना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, या और भी कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो सॉल्व करना। लेकिन अभी क्या है, एग्जाम पूरा ऑनलाइन हो गया है गेट का, और तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हम जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जाम दे। लाइक हमें एक लैपटॉप है, कैलकुलेटर भी वहां आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर ही यूज करना होता है, और टाइम मैनेजमेंट एवरीथिंग जो कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं कर सकते हैं, तो वो सब ऑनलाइन। तो मैं ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में, मैं ये रिकमेंड करूंगा सभी को जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कि वो मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो पार्टिसिपेट करें। मॉक टेस्ट 2 तरह से हो सकते हैं, वो
ऑफलाइन वाला मैंने आपको पहले बता दिया, अभी हम ऑनलाइन की बात करेंगे। अब यहाँ पे काफी लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होंगे जो गेट प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होंगे। तो जैसा मुझे लगता है, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि कोई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को वो ज्वाइन करें। इस केस में अभी आप जितना भी ऑफलाइन मटेरियल है जो मैंने आपको अभी तक बताया है वो सब यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जब खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है या फिर डिग्री के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप कोई भी एक या दो अच्छी टेस्ट सीरीज है उनको सब्सक्राइब कीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला फायदा है कि फैमिलियराइजेशन विद रियल एग्जाम लाइक सिनेरियो। गेट में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपने जो भी 4 साल में पढ़ा है या फिर 4 साल के बाद में 8-10 महीने की प्रिपरेशन में पढ़ा है, वो सारा इनपुट का टाइम आपको 4 साल है और आउटपुट का टाइम 3 आवर्स ओनली। वो 3 घंटे में आपको सारा जो भी आता है वो आपको लिखना है। तो वहां पे दिमाग में ना पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। मैंने बहुत सारे मेरे मित्रों को देखा है जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, मेरे साथ भी प्रिपरेशन किए और मेरे से अच्छी प्रिपरेशन की होगी, काफी लोग ऐसे भी थे, और एग्जाम में जाके वो लोग थोड़ा पैनिक कर गए या फिर उनका जैसे भी कुछ ऐसा हो गया कि वहां पे वो थोड़ा ज्यादा पैनिक कर गए और वो आते हुए क्वेश्चनों को गलत कराए प्रश्न को। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जो उसका एग्जाम का प्रेशर होता है उसको हैंडल कर पाए। तो वो तभी हो सकता है कि आप बार बार उसी सिनेरियो में एग्जाम देंगे तो आपको वो एक रेगुलर सा फील आएगा, कोई स्पेशल फील नहीं आएगा उस दिन। सेकंड एडवांटेज आता है कि बेटर टाइम मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके पास साइड में जो है क्लॉक चलती रहती है और बहुत बार आप जब प्रैक्टिस टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपके इसलिए छूट गए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा। तो आप बार बार जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट खुद करने को सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको एफिशिएंटली किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। और अगर कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन है कि बहुत टाइम आपका खराब कर रहा है तो आप उसको रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं बाद में करने के लिए, पहले इजी क्वेश्चंस को आप कर ले सॉल्व। तो वो सब आपको सीखने को मिलता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑनलाइन कैलकुलेटर। जब भी हम तैयारी करते हैं लाइक किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम हमेशा अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो फॉलो करते हैं। लेकिन अभी जब से गेट में ऑनलाइन कैलकुलेटर हुआ है तो वो ऑनलाइन कैलकुलेटर दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक कैलकुलेटर, और उसको यूज करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमें 4 साल में आदत लग जाती है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते समय हम ऑनलाइन साइंटिफिक कैलकुलेटर को बिल्कुल नहीं यूज करें, ऑनेस्टली टेस्ट सीरीज दें और जो ऑनलाइन कैलकुलेटर मिला है उसी को यूज करें ताकि हमें गेट एग्जाम में भी सेम वैसा ही कैलकुलेटर मिलने वाला है। तो वो हमें बहुत फायदा रहता है इससे। और चौथा एडवांटेज है कि गेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलती है। और एक जो सबसे लास्ट जो इसका एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है कि इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हो, और उसका पता तभी चलता है कि आप एग्जाम जो आपने टेस्ट दिया उसके बाद जो भी स्कोर आया उससे आपका पोस्ट एनालिसिस कीजिए उसका कि आपने कहाँ गलती की, किस क्वेश्चन में गलती की। और अगर कोई क्वेश्चन सही भी किया है तो आजकल जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है विद सॉल्यूशन रहती है। जब भी आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आप रिव्यू करने के लिए पूरा सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो वहां से आप अपने जो क्वेश्चन सही भी सॉल्व किया है तो आपने कॉन्सेप्ट सही यूज किया है या नहीं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और आपने सबसे बड़ी बात कहाँ गलती की है वो आपको देखने को मिलता है, फिर आप उस टॉपिक को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं अपनी गेट प्रिपरेशन में मैं बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा रोल मेरे लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का रहा था जो मेरी प्रिपरेशन में रहा है। मैं बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था मेरी जो सक्सेस है उसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सीरियसली गेट प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छी रैंक लाने के लिए, वेदर वो एमटेक में आईआईटी में एडमिशन करने के लिए या फिर पीएचडी ज्वाइन करने के लिए चाहते हैं, तो अगर सीरियसली करना चाहते हैं तो कम से कम मैं कहना चाहूंगा कि 2 टेस्ट सीरीज डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट कोचिंग की या फिर डिफरेंट ऑनलाइन स्टडी पोर्टल काफी हो चुके हैं आजकल, कोई भी 2 डिफरेंट यूज करें जो कि अच्छे हों। 2 डिफरेंट इसलिए काफी बार ऐसा होता है कि
एक कॉलेज जो एक कोचिंग है काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देते हैं और कुछ एक दो टॉपिक्स को मिस कर जाते हैं, तो अगर आप दो डिफरेंट यूज करेंगे तो आपका पूरा उसमें कवर हो जाएगा। और साथ में काफी बार है कि आपको बार बार रिवीजन करना है तो टेस्ट भी ये लिमिटेड रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं एक टेस्ट सीरीज से। तो दो डिफरेंट टेस्ट सीरीज रहेगी तो उससे फायदा ये रहेगा कि नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ जाएंगे और क्वेश्चंस की जो टाइप्स है वो भी बढ़ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रियल एग्जाम की तरह ही आपको देना है, कोई आपको नोट रेफर नहीं करने उस टाइम पे, कोई बुक रेफर नहीं करनी है। आने दो, अगर कम मार्क्स आते हैं तो आपको जो रियल आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलना चाहिए। जी, पोस्ट एनालिसिस आपको जरूर करना है, ये आपको बता चुका हूँ। जो भी सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं उनको दोबारा से तैयारी करनी है। और एक जो मैं और सीरियसली बात बोलना चाहूंगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से कभी अपने आप को होपलेस भी नहीं फील करना है। हो सकता है कुछ कुछ टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं लेना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए उसको करते हैं कि वो कहीं किसी दूसरे गलत तरीके से कहीं से क्वेश्चन पता करके आंसर पता करके और लोगों को दिखाने के लिए कि फर्स्ट रैंक मेरा आ गया, 100 ऑन 100 मार्क्स आ गए, इस टाइप की प्रैक्टिस भी लोग करते हैं। तो वो सब लोग से अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि हमें अपना खुद का देखना है, बाकी लोगों के साथ में हमें नहीं कंपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आप पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब अभी कुछ टिप्स है कि आप जब लास्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं, एग्जाम से 1-2 महीने पहले का टाइम रहता है, उस टाइम पे क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लास्ट मंथ है उसमें रिवाइज कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि इन द लास्ट डे आपको वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट दीजिए, अपनी वीकनेस जितनी है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए काम कीजिए। डेली का एक प्लान बनाइए सब्जेक्ट वाइज कि 2 से 4 टेस्ट कम से कम दे पाए, और प्लान कीजिए कि वीक में कम से कम 8 फुल सिलेबस टेस्ट दे पाए जिसमें सारे सिलेबस हो, पूरा 3 घंटे का टेस्ट हो। वीकली बेसिस पे वो टेस्ट देने का ट्राई कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल रहता है आगे के लिए। और पैनिक बिल्कुल नहीं हुई है, अपने आप में डाउट मत क्रिएट कीजिए। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट आपका, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सबसे टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। नेक्स्ट है कि आप एग्जाम से जस्ट 10-15 दिन पहले आप क्या करेंगे। इस दौरान हमारी एक सलाह है कि आप कोई भी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे अभी हमारी सलाह तो ये है कि आप पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट कीजिए, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई सिलेबस में कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो ये वो टाइम नहीं है जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन जा चुकी होगी कि नई इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, और उस वजह से आपके पुराने प्रिपेयर किए हुए टॉपिक्स पे असर पड़ सकता है। तो उस टाइम पे आप ज्यादा ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें जितना हो सके, टेस्ट पेपर रेगुलर अटेम्प्ट करते रहें। और बाकी कुछ चीजें पढ़ाई के अलावा जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं उस टाइम पे पैनिक में आके कि 2-2 3-3 दिन तक लोग सोते नहीं है, पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो 3 घंटे का एग्जाम देना है उस टाइम पे आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, और आपको एक सारा ऐसा चाहिए कि सारे क्वेश्चन जो सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो एकदम से दोबारा से रिकॉल हो जाए। तो आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, 8 घंटे सोना आई थिंक जरूर है, पैनिक नहीं होना है। एग्जाम से 1 दिन पहले आपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड है, जो भी सब वो संभाल के रखिए। आपने एग्जाम सेंटर के बारे में पहले से जानकारी रखिए, कैसे जाना है नहीं पहुंचना है, क्योंकि काफी बार बहुत सारे लोग क्या है कि पहले से नहीं करते हैं और इन एंड ऑफ द डे काफी बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि थोड़ा एंड मोमेंट में थोड़ा पैनिक हो जाते हैं ड्यू टू ट्रैवल अरेंजमेंट, और कोई नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि बिल्कुल टेक्निकल नहीं है और बहुत अच्छी पढ़ाई की होती है, और इन सब वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और पेपर बिगड़ जाता है। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो मिस्टेक्स हम कर सकते हैं।
बाकी कुछ डूज और डोंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रादर देन मेमोराइजिंग एवरीथिंग, क्योंकि सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्राई करने हैं जितने ज्यादा कर सके। मॉक टेस्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, टफर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना है। जितने ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करना है और उसके बाद में उसको रिव्यू करना है इसके सॉल्यूशंस का। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत बार ऐसा रहता है कि बहुत शॉर्टर मेथड भी रहता है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो पता चलेगा। एक लास्ट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट वो बहुत जरूरी है गेट एग्जाम में, तो वो आपको करना है, वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से सीखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट आई विल से अगेन, रिवाइज 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 एंड रिवाइज एंड डोंट। क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है एग्जाम के दौरान? पैनिक नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा या ज्यादा टफ है, आप उसको छोड़ के किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट नहीं भूलना है एग्जाम के दौरान। किसी डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, ये बहुत बार होता है। काफी बार हम क्या देखते हैं कि कोई आपका दोस्त है या आपका सहपाठी है जो कि तैयारी कर रहा है, तो हम आंख मूंद के उसके जैसे जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है हम वो पढ़ने लग रहे हैं, जो क्वेश्चन वो रेफर कर रहा है। ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप खुद अपना देखिए, हो सकता है वो कोई सामने वाला कोई मिस्टेक कर रहा हो, तो ये किसी को फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। अगर आपका कोई टेस्ट पेपर अच्छा नहीं होता है तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, बल्कि आप और प्रैक्टिस कीजिए, अपने टॉपिक को इम्प्रूव कीजिए और उसके बाद में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। डोंट वेस्ट टाइम इन लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ में मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा कि नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पहले ही हमें कर लेना चाहिए जहाँ तक है। और बाकी और भी किसी भी तरीके से मतलब अदर देन एग्जाम प्रिपरेशन और किसी और दूसरी वजह से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत क्रुशियल टाइम है। जितना ज्यादा उस टाइम में आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। और एक सबसे अंतिम पॉइंट मैं बोलूंगा जो मैं पहले भी आपको बोला था, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पेपर। पुराने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख के किसी सब्जेक्ट को छोड़ के मत जाइए अगर वो सिलेबस में है, क्योंकि पैटर्न कभी सेम नहीं रहता है। जरूरी नहीं है कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे जिस सब्जेक्ट में से ज्यादा, अभी भी उसी में से ज्यादा पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको उस बेसिस पे आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़िए मत। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका था। अभी ये तो हमारा पूरा डिस्कशन था गेट एग्जाम के बारे में, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा अदर पीएसयू एग्जाम्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो पिछले करीब 7-8 साल से ऐसा ट्रेंड है कि ज्यादातर पीएसयूज ने अपने जो इंडिविजुअली एग्जाम होते थे वो बंद कर दिए हैं, और या तो वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं या जाते थे, फिर अगर उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है तो वो गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करते हैं। वो गेट के एग्जाम का जो हमारा गेट स्कोर रहता है उसका एक पोर्शन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैंडिडेट। सपोज उनको 100 का रिक्वायरमेंट है तो वो 400 या 500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू और ग्रुप टास्क वगैरह टाइप की कुछ क्लिनिक प्रोसेस रहती है, वो होती है, और उनका स्कोर होता है प्लस गेट स्कोर होता है। दोनों को एक प्रोपोर्शनेट वे में स्कोर, जब वेटेज एवरेज करके उनका स्कोर निकलता है पूरा, उसके अकॉर्डिंग वो फाइनली रिक्रूट करते हैं। जनरली मैक्सिमम जो टॉप पीएसयूज है उनमें अभी वो रेशो है 85-15 का है। मतलब जो गेट स्कोर है वो 85% मैटर करता है और जो इंटरव्यू है वो 15% मैटर करता है। तो ये मान सकते हैं हम ये चीज कि अगर आपका गेट स्कोर जितना अच्छा होगा उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू स्कोर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू स्कोर से हाँ आपको ये फर्क पड़ सकता है कि इंटरव्यू में बहुत सारी कंपनीज है वो एक
क्वालिफिकेशन वो रखती है कि यस और नो वाला है, कि अगर आपने सर्टेन परसेंट से अबव आपने इंटरव्यू में स्कोर किया है तो ही वो आपके स्कोर को वैलिड मानेंगे, अदरवाइज वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैटर हो सकता है, अदरवाइज जितना ज्यादा गेट में स्कोर करेंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 85% एक काफी बड़ा प्रोपोर्शन होता है 100 में से। गेट के अलावा भी लेकिन कुछ पीएसयूज हैं अभी भी जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, कभी कभी बीच में करवाती हैं, कभी कभी नहीं करवाती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जनरली जो टेक्निकल सिलेबस रहते हैं वो गेट में जो रहते हैं उतने ही दूसरे एग्जाम पीएसयू के एग्जाम में रहते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे एग्जाम पीएसयू का एग्जाम भी इजीली लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी किसी पीएसयू के एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलता है तो सबसे पहले आप उसमें देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप एलिजिबल है क्या, क्वालिफिकेशन, एज, ये आपको देखना है। क्वालिफिकेशन से मैटर करता है, बहुत बार पीएसयू के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि अगर वो किसी पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी निकाली है तो उनमें बीटेक में डिग्री होनी चाहिए, तो किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। काफी बार जैसे रहता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसा भी कुछ कॉलेजेस में एक ब्रांच होती है, तो काफी बार इलेक्ट्रिकल वाला उसके लिए मतलब एलिजिबल होता है, काफी बार नहीं होता है। तो वो सब आप देख लीजिए, कहीं आप जो भी खर्चा कर रहे हैं और आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता चले आपने एग्जाम भी लिख दिया और उसके बाद में इंटरव्यू में आपको बाहर कर दिया गया ड्यू टू दीज फैक्टर्स। तो आप नोटिफिकेशन को ठीक से देखिए, क्योंकि जब अलग अलग कंपनीज के नोटिफिकेशन निकलते हैं ना तो हर एक में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो आप ध्यान से देखिएगा। और अब फिर एक ये रहता है कि जो पीएसयू के एग्जाम है उनमें इतने ज्यादा जो क्वेश्चंस का लेवल है उतना हाई नहीं होता है जितना गेट में रहता है। जनरली गेट में जो कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और बाकी कुछ एक दो पीएसयू को छोड़ देते तो नॉर्मली सभी और एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन भी अच्छा खासा रहता है न्यूमेरिकल के साथ साथ। तो उस हिसाब से भी हमें प्रिपरेशन करनी है, स्पेसिफिकली किसी अलग से पीएसयू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे पीएसयू एग्जाम्स में जो जनरल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इन सब का अच्छा खासा प्रोपोर्शन रहता है। जैसे गेट में तो 15% है, काफी में 50% तक भी हो जाता है, तो हमें उन चीजों की प्रिपरेशन भी अलग से कर सकते हैं। कुछ में करंट अफेयर्स और जीके भी आता है, जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है, तो उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी कुछ एग्जाम्स जैसे कि रेलवे का एग्जाम है, और भी कुछ एक दो एग्जाम होते हैं जिनमें रहता है कि कॉमन क्वेश्चन पेपर रहता है। मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग के जो भी बेसिक चीजें हैं वो हर किसी के सब्जेक्ट में आती है, किसी सब्जेक्ट बेस्ड पेपर नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि आप जो सिलेबस है उस एग्जाम का उसको चेक कीजिए और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो ये तो मेरा प्रेजेंटेशन था जो मुझे आपको देना था। बाकी जैसा कॉल सर ने बताया कि मुझे मोस्टली अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करने हैं, तो मैंने जस्ट एक रखा है स्टोरी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, वो मैं थोड़ा सा बता सकूं। तो अगर अभी तक की जो उसमें कोई किसी को क्वेरीज है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, फिर मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जो आए हुए हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। मैंने वैसे अब अनम्यूट कर दिया है। all participants can go on to unmute themselves because there was certain disturbance in the beginning. That's why we had gone on to mute them. So now we have unmuted everybody. So you can take up those questions which are there in the chat box. जी सर, चैट बॉक्स में कुछ पूछा ना, there are some क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा है, सर ऐसा लगता है कि गेट के चक्कर में सब कुछ ना छूट जाए, मतलब बस किताबों में बंद के रह जाए। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप सेकंड ईयर से, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर सेकंड ईयर से अगर तैयारी कर रहे हैं
तब आपको इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, आप प्लान्ड वे में कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम है आपके पास। आप जब कॉलेज में सब्जेक्ट को किसी को पढ़ रहे हैं उसके साथ में आप प्रिपरेशन कीजिए, और जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कॉलेज में नहीं है, मतलब या पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, या कोई सब्जेक्ट है जो प्रीवियस सेमेस्टर में पूरा हो चुका है, कभी निकल, वो आपको बहुत टाइम मिलता है बीच में। आई थिंक सर जो हमारा जो इवन ऑड सेमेस्टर टू इवन सेमेस्टर के बीच में ब्रेक है वो भी 15-20 दिन का होता है, और उसके बाद में तो आई थिंक 2 महीने का गैप रहता है, जो ऑड इवन सेमेस्टर से ऑड सेमेस्टर के बीच का गैप जो रहता है, सेकेंड सेमेस्टर टू थर्ड सेमेस्टर के बीच, वो 2-2.5 महीने का गैप रहता है, तो आपको काफी टाइम मिल सकता है। उसके अलावा 5 डे वीक चलता है कॉलेज में, तो 2 दिन का वीकेंड भी बहुत होता है आपकी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करते हैं और अच्छी रैंक पाते हैं। हमारे बैच में मेरा भी एक बैचमेट था, उसने कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन चालू की थी, और इनफैक्ट उसने अपने 3rd ईयर के बाद प्रिपरेशन चालू की थी, और अच्छा रैंक उसने कॉलेज के साथ ही पा लिया कि उसको उसी टाइम पे PSU मिल गया। तो ऐसा नहीं है, आपको प्लानिंग करनी है और आप प्लान करके चल सकते हैं, आप पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि किताबों में बन के रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सर, अकॉर्डिंग टू यू विच इज योर वन क्वालिटी विच सिग्निफिकेंटली चेंज योर रैंक फ्रॉम 1000 to 17? इसमें मैं वही कहना चाहूंगा कि एक राइट हमने स्टडी मटेरियल और राइट गाइडेंस मिला, और अच्छी प्रैक्टिस की, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मैटर करती है। आप बहुत सारे लोग हैं जो अगर क्लासरूम भी अगर कोई अटेंड करते हैं, सपोज आप बीटेक डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई आप कोचिंग अटेंड करते हैं, जैसे कि मैंने की थी एक, तो वहां पे सबको ज्ञान बराबर ही दिया जाता है। स्टूडेंट कभी किसी को, जैसे कॉल सर का भी ये एक बहुत बार सर बोलते हैं कि स्टूडेंट जो ज्ञान देता है वो तो सबको बराबर देता है, टीचर जो पढ़ाता है सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन जो अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि कौन उसको कितना ले पाता है। तो वहां पे तो सबको बराबर पढ़ सकते, हो सकता है किसी को और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए, लेकिन जो मैटर करता है प्रैक्टिस, जो जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पेपर करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। मैंने अपने आप में खुद पाया है कि मेरी रैंक अचीव करने में बहुत बड़ा योगदान जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने की उसका था, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है और जो हमने पढ़ा है वो तो हर कोई पढ़ सकता है, और सबके लिए बराबर स्टडी मटेरियल है, हो सकता है किसी के पास और भी ज्यादा हो, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करती है। राइट टाइम टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर गेट फ्रॉम 2nd ईयर और 3rd ईयर, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अगर अभी 1st ईयर और 2nd ईयर में है तो अभी बेटर है कि आप 2nd ईयर से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2nd ईयर में आपके बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक नेटवर्क थ्योरी है, आपका मेजरमेंट्स वाला एक सब्जेक्ट रहता है, मशीन्स चालू हो जाती हैं, और भी मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट जो गेट में आते हैं वो 2nd ईयर में सबसे ज्यादा होते हैं, और उसके बाद 3rd ईयर में होते हैं। तो आपको 2nd ईयर से ही ज्यादा बेटर है कि आप साथ में प्रिपरेशन चालू कर दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिन रात वाली मेहनत आपको 2nd ईयर से करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर आप 2nd ईयर से प्रिपरेशन चालू करने जा रहे हैं तो ये डेफिनेट है कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद भूल जाते हैं सब्जेक्ट को। जनरली 1 से 2 महीने में हर सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, 2 महीने में तो हो ही जाना चाहिए अगर उसको रेगुलरली हमें याद रखना है तो। डज फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट गेट स्कोर? हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज है फॉरेन की, अब मेरे पास पूरी डिटेल उसकी नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ हैं जो कि गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में जो GRE का रिप्लेसमेंट के तौर पे भी गेट स्कोर को वैलिड माना गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, मेरे पास उसकी मैंने लिस्ट नहीं बना रखी है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन है ऐसा। सर, विच ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वुड यू रिकमेंड फॉर गेट इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट? देखिए, मेरे को अभी करंट सिनेरियो का इतना पता नहीं है, क्योंकि मेरे को जो गेट एग्जाम दिए 6 साल हो चुका है, 6-6.5 साल। लेकिन तो भी मैं एक चीज बता सकता हूँ, जैसे मैं अपने टाइम का बताता हूँ, मैंने मेडिजी की कोचिंग ज्वाइन की थी। मैं यहाँ पे किसी भी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट या एंडोर्स करने के लिए नहीं हूँ,
लेकिन जस्ट मैंने वहां पे देखा है कि उनका कैसा स्टडी मटेरियल होता है और कैसी टेस्ट सीरीज होती है। तो आपको मैं इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिकली बोलूंगा, बाकी मुझे ब्रांचेस का नहीं पता है। एक टेस्ट सीरीज आप मेडी जी की ज्वाइन कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब दूसरी टेस्ट सीरीज आप देखिए इस टाइम पे कि कौन सा कोचिंग है जो या ऑनलाइन पोर्टल है जो कि अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, तो उसकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर टेल अबाउट योर आईएएस और एसएससी जेई एग्जाम। नहीं, मैं एसएससी जेई एग्जाम मैंने लिखा नहीं था और आईएएस का एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया था, और कुछ ऐसा भी था कि गेट का मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया था, तो मैंने ये इसका फिर इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उन सबकी प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी थी एक तरीके से। तो इसका ये है गेट लेवल प्रिपरेशन से एंड सीआईएसआर एग्जाम क्रैक हो सकता है। ये मुझे आप थोड़ा इलाबोरेट करेंगे तो पता चलेगा, मेरे को पता नहीं है सीआईएसआर एग्जाम कौन सा है। अगर आप वो देख लीजिए सिलेबस कैसा है और एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्योंकि प्रिपरेशन तो अल्टीमेटली आप जो भी पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि गेट की प्रिपरेशन है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सेम है, कॉन्सेप्ट अगर सब्जेक्ट सेम और एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम है या उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें हेल्प हो सकती है आपको। So like I'm in final year and I'm preparing for GATE, but sometimes semester exams are major. Yes. I'm on GATE level. Yes. देखिए आपकी उस टाइम पे आपकी पहली प्रिपरेशन पहली जो प्रेफरेंस है वो तो आपको सेमेस्टर एग्जाम ही है। आपको पहले जब तक बीटेक नहीं होगी आपका गेट में अच्छे स्कोर आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम टाइम पे तो वही पढ़ना है और उससे पहले ही वही पढ़ना है। आपको मैनेज करना है खुद को कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करें कि आप जो कॉलेज का जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको पहले प्रेफरेंस उनको दें, उसके बाद बचे हुए टाइम में गेट की तैयारी करें। वो आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है सेक्रीफाइस भी करनी पड़े। जो थोड़ा बहुत टाइम आप किन्हीं और चीजों में व्यतीत करते होंगे कॉलेज लाइफ में, वो चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं, वीकेंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम कॉलेज की तो पहली इंपॉर्टेंस तो वही है, वो एग्जाम आपको क्लियर करनी है, उसकी पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको गेट की तैयारी करनी है। थर्ड ईयर में भी गेट एग्जाम दे सकते हैं क्या? नहीं, थर्ड ईयर में गेट एग्जाम पहले हुआ करते थे, पर आई थिंक 8-9 साल से ये बंद हो गया है। अभी फाइनल ईयर में ही आप गेट एग्जाम दे सकते हैं, जैसा मेरी इंफॉर्मेशन है। बाकी आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अगर ऐसा कुछ प्रोविजन नया आ गया हो तो। हाउ इज लाइफ एट IOCL? ये तो मतलब ऐसा कोई एक जनरलाइज नहीं बोल सकते हैं, सबका अपना अपना इसमें नजरिया होता है, किसको कौन सी लाइफ अच्छी लग सकती है, किसको नहीं लग सकती। और जैसे कि IOCL जैसा कंपनी है हमारा, तो यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस हैं और बहुत सारा टाइप का वर्क एनवायरनमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप की जॉब्स हैं। तो किसी को कोई पसंद आ सकती है, किसी को नहीं पसंद आ सकती है। एज फार एज कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है तो मैं अभी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी जो मुझे अब तक जितने भी असाइनमेंट्स मिले हैं और जो भी मैं करंट जॉब अभी कर रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। देखिए, जो आपने एक क्वेश्चन डाला PSU प्राइवेटाइजेशन, वो आई थिंक यहाँ पे डिस्कस करने लायक है नहीं, वो मैटर अलग है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में सिर्फ थ्योरी इनफ होगी, जबकि सेमेस्टर सिलेबस में मैथ्स हो। सेकेंड ईयर में जितना Lokesh, I think so we can go on to start with your my story and then take up their live questions one on one, because everything cannot be discussed on this chat and some questions might not be suitable for you to reply from there. जी सर। So you can continue with your story and then we can take some live questions. ओके, तो सर मेरा स्टोरी है सर, वैसे मैं बहुत सारी चीजें बीच में कवर कर चुका हूँ। मेरा सर जैसा कि बीना मैम भी यहाँ पे फोरम पे है, कॉल सर भी है, तो सर को भी सबको पता है आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग माई बीटेक। और तो मतलब मैं तो क्लास टॉप 20 में भी नहीं था फ्रेंकली, अगर मैं कहूँ तो उस टाइम पे। लेकिन मेरा एक रहता था कि मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो करिकुलम वाली चीज हो या एक्स्ट्रा करिकुलर चीज हो।
तो मेरा कॉलेज में एक था कि सब चीजें मुझे करनी है, तो मेरा ऑलमोस्ट क्या कोई टैक्स हिल फेयर था, निम्बस था, सब में हम लोग का बहुत अच्छा हम पार्टिसिपेट करते थे। तो उस टाइम पे इतना फोकस नहीं था गेट के लिए। तो हम लोग का ये था कि फाइनल ईयर में हो सकता है कि कुछ कंपनियां आएंगी और हम लोग इंटरव्यूज में बैठेंगे और कहीं प्लेसमेंट हो जाएगी, ये सोच के हम चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि थोड़ा रिसेशन का ईयर था 2013-14 वाला, तो बहुत ज्यादा कंपनियां आई नहीं, खासकर कोर कंपनियां, एक दो कंपनियां आई थी इलेक्ट्रिकल की, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां आई थी। तो सॉफ्टवेयर में हमारा इंटरेस्ट नहीं था इतना, और हमें ज्यादा आता भी नहीं था कंप्यूटर के बारे में। तो वहां पे हमारा फ्रेंकली हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ था किसी भी कोर कंपनी में। तो उसके बाद ही हमने आई थिंक 8 सेमेस्टर में हमने डिसाइड कर लिया था, हाँ 8 सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें गेट का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि हमने फाइनल ईयर के साथ मैंने गेट का एग्जाम दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, जस्ट जो भी हम बीटेक के दौरान पढ़ते थे। और मैंने देखा था कि मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था, बहुत सारे लोग जो कि प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे थे उनसे अच्छा स्कोर किया था। क्योंकि मैंने एग्जाम का पैटर्न देखा कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे, और मैथमेटिक्स हमेशा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है शुरू से ही, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो भी सब बीटेक के सिलेबस के ही क्वेश्चन हैं। तो हमें लगा कि प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी बीटेक डिग्री खत्म हुई तो हम डायरेक्ट घर नहीं गए, हम डायरेक्ट दिल्ली चले गए सर। वहां जाके हमने एक कोचिंग में एडमिशन लेके और अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। कोचिंग में उनका एक पैटर्न रहता है कि एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ाते हैं वो। तो या तो मतलब हाँ ऐसे ही रहता है, 2 या 3 सब्जेक्ट पैरेलल में चलते हैं एट मैक्स, या फिर एक ही सब्जेक्ट चलता है, इस टाइप से उनका रहता था। तो कोचिंग की क्लास जो होती थी साथ में, जो वहाँ पे हमें गाइडेंस मिलता था कि कैसे क्वेश्चन करने, थ्योरी पढ़नी है, वो हमारा डेली का रूटीन था। करीब 6-7 घंटे हम करीब शुरुआत में 6-7 घंटे हम करीब डेली का पढ़ते थे, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग में जो हमें बताया गया है। फिर ऐसा करते करते फिर धीरे धीरे होता है कि सिलेबस का लोड बढ़ता जाता है, पुरानी चीजें भूलते जाते हैं। तो रिवीजन हमने चालू किया, नोट्स हम फॉलो करते थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, टेस्ट देते थे। और फिर इन द एंड जब बाद में तो ये था कि हम 12-12, 13-13, 14-14 घंटे हम तैयारी करते थे। और तैयारी में मेनली यही होता है कि आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं खपाना होता है। थ्योरी में ज्यादा टाइम अगर आपने लगा दिया तो फिर आपकी प्रैक्टिस कम रह जाएगी। तो एक बार जब किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो तो थ्योरी में अच्छा खासा टाइम दो, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, और नोट्स को जब भी रिवाइज करना है जल्दी जल्दी नोट्स को रिवाइज करो। और जब भी आप सब्सिक्वेंट रिवीजन कर रहे हो तो आपको जो टाइम है वो डिक्रीज होना चाहिए रिवीजन का, और हर रिवीजन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे आपको वही सेम पेपर 2 महीने बाद दोबारा देना पड़ रहा है, दीजिए आप। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे, वही आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। तो इट्स ऑल अबाउट माई स्टोरी सर, गेट के लिए जो है। Now the house is open for some questions from the audience, and I'll ask the audience to simply ask the questions verbally, not write anything on the chat. Some of the participants who have switched on their audios, I'll request them to kindly. I'm muting them all, and now whosoever wishes to ask a question, I'll unmute that fellow. So please kindly ask questions verbally, not write anything on the chat. You can ask the questions. You can raise your hand and we'll try to respond to you. Any questions? Feel free to ask. It's your alumni, your own senior who can help you in some way. In case you wish to ask something, we'll go on to give an opportunity. Just I'll try to unmute. If Komesh is willing to ask something, I'll just open him, allow him to. So if you can. No, sir. Thank you. Yes, so you can ask. No question, sir. Thank you.
Anybody else who wishes to ask some question? Anybody can ask question. Feel free to ask questions. It is Mr. Lokesh will be more than happy to take up certain questions from your side. Rajendra, you can unmute yourself, Rajendra. Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. Sir, what are the domains where EC students work in PSU, sir? Like same as BLSA, like that, sir, or something like analog, digital? Like, what are the domains actually these electrical and electronics guys work in PSUs? Rajendra, please can you repeat your question? Rajendra's question is that where do electronics guys go on to work in PSUs? So that is what his question. ओके तो PSU में इलेक्ट्रॉनिक गाइस का एक्चुअली जैसे मैं IOCL या ऑयल PSU का बताऊं और जो कि IOCL, HPCL, BPCL, ONGC, GAIL इनका तो मैं ज्यादा डिटेल में बता सकता हूं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक गाइस का जनरली यहाँ पे एक हमारे रहता है टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वहां पे जनरली इलेक्ट्रॉनिक गाइस की पोस्टिंग होती है उसमें, और एक ऑटोमेशन का रहता है वहां पे जो स्काडा सिस्टम, PLC सिस्टम रहता है, एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम रहता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड भी है, GSM बेस्ड भी है, उन सब में रहता है। और एक इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारे जो कि मैकेनिकल जो भी हमारा पाइपिंग है और फ्लो, क्योंकि हम लोग फ्लूइड से जो फ्यूल्स और क्रूड ऑयल ये सब का काम रहता है या गैस का काम रहता है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस रहती है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस रहती है, फ्लो सेंसिंग डिवाइसेस रहती है, उन सब का प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग का रहता है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो हर PSU में रहता है वो रहता है स्काडा सिस्टम और PLC सिस्टम, जो कि हर इंडस्ट्री में यूज होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इनका योगदान है। I think Akash Singh has another question. Hello. Yes, Akash. Sir, I want to ask a question, sir. Sir, whether this GATE exam preparations will be helpful for the preparation of our company's placement or interviews, sir, or both preparation is completely different? Preparation for, I think, campus placement. Yeah, हाँ, he's तो asking about campus placements and कैंपस प्लेसमेंट में ये गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन हेल्प करेगी कि दोनों सर अलग अलग होते हैं सर? जी देखिए, कैंपस प्लेसमेंट तो आपको गेट एग्जाम तो एक तरह से वो एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए, मतलब वो और तोहफा बन गया, क्योंकि आपको कैंपस प्लेसमेंट में वही पूछा जाता है जो आपने बीटेक में पढ़ा है वहां पे, ठीक है, उसके अलावा नहीं पूछा जाता है कुछ भी। और ऊपर से आप अगर गेट का तैयारी करते तो आपको ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा, आपकी जो भी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो और ज्यादा डेप्थ चली जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर PSU, पर्टिकुलरली आप PSU की बात करें तो PSU का इंटरव्यू जो होता है, वैसे इस टॉपिक के बाहर की चीज है लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं, PSU के जितने भी मैंने करीब 5 या 6 इंटरव्यू अटेंड किए हैं PSU के, और कम से कम मैंने 6 इंटरव्यू मैंने फाइट भी, मतलब क्रैक भी किए हैं। तो उन्हीं के थ्रू जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि PSU के इंटरव्यू में मुझसे सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा हाई फाई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और PSU के इंटरव्यू में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी बीटेक डिग्री में आपने क्या पढ़ा है, आपने जो प्रोजेक्ट आपका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं वैसे भी मैं इधर से टॉपिक छूट गया, मैं बोलना चाहूंगा सभी को, आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर PSU के लिए, तो आपके PSU के जो इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो 2 चीजें मेनली पूछी जाती है रादर देन एनी सब्जेक्ट। उसमें जनरली तो इंटरव्यू रहता है वो HR बेस्ड और इस टाइप का एप्टीट्यूड बेस्ड रहता है, आपकी पर्सनालिटी के लिए जरूर टेस्ट रहता है रादर देन टेक्निकल। जनरली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, काफी जगह तो PT बोलते हैं इंटरव्यू को भी, पर्सनैलिटी टेस्ट। साथ में अगर कुछ टेक्निकल पूछा जाता है तो या तो आपने जो बीटेक फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में डेप्थ में पूछा जाता है,
और सेकंड थिंग, आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है उसका जरूर पूछा जाता है, क्योंकि उनका उससे रिलेवेंस रहता है कि आप किसी इंडस्ट्री में गए हो 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने के लिए, तो वहां आपने क्या सीखा और क्या किया, क्योंकि वही आपकी जो भी आपको हेल्प करेगा। आगे आप कंपनी में जा रहे हो तो वहां कैसे आप काम करोगे, क्या सीखोगे, तो कितनी जल्दी उन चीजों से आप फैमिलियराइज होगे, वो मैटर करता है। इसलिए ये 2 चीजें ज्यादा पूछी जाती है टेक्निकली। और रहा बात आपका क्वेश्चन की आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी क्या, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप टेक्निकली पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली हेल्प तो मिलेगा ही। आई थिंक मैंने I आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है। I think the questions are over, so we can close the session. And may I request Chitresh to formally give a vote of thanks to Lokesh, so that we can close the session for today. एक चीज बस मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर किसी का कुछ डाउट और भी है ना, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेल आईडी अपना चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? कभी भी अगर कुछ है तो मेल कर सकते हैं। सब ठीक है, तो ठीक है। Thank you, sir, for your inspiring words. Am I audible, sir? Yeah, Yeah. Chitresh, you are audible. Sir, I'm sure that, sir, everyone who attended the lecture today are inspired and grateful for your knowledge that you shared with us. And hearing one of our own achieving so much in life motivate us to follow our dreams with more passion and enthusiasm. So on the behalf of Deal Alumni Affairs and Resource Generation, I would like to thank you for accepting our invitation and motivating us with your journey. Thank you, sir. It was an honor to have you here. Thank you, Chitresh, and thank you, Paul sir, to giving me this opportunity. No, to present thanks is my we extend our gratitude towards you, Lokesh. You have been a wonderful ambassador of the institute. You have kept the institute flag flying high. Your commitment and dedication is always well noted and well etched in the memories of all the faculty members of at least NIT, Electrical Engineering Department of NIT Mirpur. So you have been always the go-to guy whom we had relied upon, and today also you lived up to those expectations. Hopefully, the participants must have been benefited with it, and our sincere thanks to you again, and hope to engage you in future activities also in near future. Definitely, sir. Definitely. Thank you. So we are going to close the Thank you, sir. session now. Thank you, sir. Take care. Take care. Thank you.